Students of class 12th, today we are going to start with lesson number 2 of your English, the diamond necklace. She was one of those pretty and charming young girls who sometimes are born as if by a slip of fate into the family of clerks. यानी वो उन खूबसूरत लड़कियों में से थी जो किस्मत की गलती की वजह से किसी गरीब फैमिली में पैदा हो जाती. She had no dowry, no expectations, no way of being known, understood, loved, and wedded by any rich or undistinguished man. So let herself be married to a little clerk of Ministry of Public Instructions. तो अब ना उसके पास देने के लिए दहेज था, ना कोई उम्मीद थी, ना कोई प्यार करने वाला था, और वो जानती थी कि उससे कोई भी पैसे वाला आदमी शादी नहीं करेगा. तो आखिरकार उसकी शादी एक लिटिल क्लर्क, छोटे से एक मामूली क्लर्क से हुई जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस में काम करता था. शी ड्रेस्ड प्लेनली बिकॉज शी कुड नॉट ड्रेस वेल, बट शी वॉज unhappy as if she had really fallen from a higher station. Since with women there is neither caste nor rank for beauty, grace and charms takes place of birth and breeding. अब वो कपड़े बहुत सादे सिंपल पहनती थी क्योंकि उसके पास थे ही नहीं अच्छे कपड़े, और वो हमेशा दुखी रहा करती थी. तो वुमेन में कास्ट और क्रीड का कोई नहीं रहता है, लेकिन उनके लिए ब्यूटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है. नेचुरल इंटीग्रिटी, instinct for what is elegant, a supple mind, and are their sole hierarchy, and often made of women of the people the equal of very greatest ladies. उनके अंदर से खूबसूरती थी, इंस्टिंक्ट था कि क्या एलिगेंट है, and often make of women of the people equal with of the very greatest ladies. Mathilde suffered ceaselessly, feeling herself born to enjoy all the delicacies and luxuries. तो मैथलेट जो थी वो अपने आप में सोचती थी कि उसका जन्म सब तरीके की लग्जरी ज़िंदगी जीने के लिए हुआ है. शी वॉज डिस्ट्रेस्ड एट द पॉवर्टी ऑफ हर ड्वेलिंग, यानी वो अपनी इस गरीबी से बहुत दुखी थी. एंड द बेयरनेस ऑफ वॉल, एट द शेबी चेयर्स, द अगलीनेस ऑफ कर्टन, यानी वो खाली दीवारें, अजीब सी गंदी चेयर्स और ख़राब कर्टन्स यानी जो पर्दे हुआ करते थे वो देखकर काफ़ी दुखी रहती थी. All those things of which another woman of her rank would have never been into conscious tortured her and made angry. तो ये सब चीज़ें देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता था, ये उसे टॉर्चर जैसा लगता था. The sight of little Breton peasant who did her humble housework aroused in her despairing regrets and bewildering dreams. तो वो अपने घर में काम करने वाली नौकरानी को देखती थी और वो उसके जैसे ही खुद को समझने लग गई थी. उसे बहुत बुरे सपने आते थे. शी थॉट ऑफ द साइलेंट नाइट चैम्बर्स हंग विद ओरिएंटल टेपेस्ट्री इल्यूमिनेटेड बाय टॉल ब्रॉन्ज कैंडेलब्रा of two great footmen in knee breeches who sleep in the big armchairs made drowsy by the oppressive heat of the stove. She thought of long reception halls hung with ancient silk, of the deadened cabinets containing priceless curiosities, and of little quittish perfumed reception rooms made of chatting at 5 o'clock with intimate friends, with men famous and sought after, whom all women envy and whose attention they all desire. तो वो बैठकर हमेशा एकदम महल जैसा खुद का घर सोचा करती थी. लंबे लंबे हॉल्स होंगे, रिसेप्शन होगा, शाम को बैठकर किसी से बात करने के लिए परफ्यूम्ड रूम्स होंगे. तो ये सब चीज़ें वो हमेशा अपने दिमाग में सोचती रहा करती थी कि काश ये सब होता. When she sat down to dinner before the round table covered with tablecloth in use 3 days opposite her husband, who uncovered the soup tureen and declared with a delighted air, "Ah, the good soup! I don't know anything better than that." She thought of dainty dinners of shining silverware tapestry that peopled the walls of ancient personage with strange birds flying in the midst of the fairy forest. And she thought of the delicious dishes served on marvelous plates and of the whispered gallantries to which to listen with sphinx-like smile. तो जब वो डिनर पर बैठती थी राउंड टेबल पर, टेबल क्लॉथ से कवर्ड, 3 दिन के बाद, इन यूज़ 3 days अपोजिट हर हस्बैंड, यानी उसके हस्बैंड के साथ, और उसका हस्बैंड उस सूप के बर्तन को खोल कर कहता था कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता. उस समय उसके दिमाग में बहुत सारी अच्छी चीज़ें चल रही होती थी. वो सिल्वर के बर्तन देखती थी, वॉल्स देखती थी, चिड़ियाएँ उड़ती हुई देखती थी फेरी फॉरेस्ट में. उसे हमेशा अच्छी डिशेस दिखा करती थी जो लोगों ने उसको सर्व करी हैं. शी हैड नो गाउन्स, नो ज्वेल्स, नथिंग. ना उसके पास कोई ज्वेलरी थी, ना पहनने के लिए गाउन था. शी लव नथिंग बट दैट, शी फेल्ट मेड फॉर दैट, यानी उसे ऐसा लगता था कि वो गुस्से में है बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए. शी वुड हैव लाइक्ड इट सो मच टू प्लीज, टू बी एनवीड, टू बी चार्मिंग, टू बी सॉट आफ्टर. वो चाहती थी कि कोई इसका ध्यान रखे, कोई इसे पसंद करे, कोई इसकी इच्छाएँ पूरी करे. She had a friend, a former schoolmate at the convent, who was rich and whom she did not like to go and see because she felt so sad when she came home.
उसकी एक दोस्त हुआ करती थी स्कूल में जो काफ़ी पैसे वाली थी, पर वो उससे मिलने नहीं जाया करती थी क्योंकि वापस घर आकर उसे बहुत बुरा लगता था. बट वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम विद अ ट्रिम्फेंट एयर होल्डिंग अ लार्ज एनवलप इन हिज हैंड. तो एक इवनिंग में उसका पति आता है और हाथ में एक लार्ज एनवलप लेके बहुत खुश होता है. देयर सेड ही, देयर इज समथिंग फॉर यू. बोलता है ये तुम्हारे लिए है. शी टोड द पेपर क्विकली एंड ड्रू अ प्रिंटेड कार्ड विच बोर्ड दीज वर्ड्स. तो वो उसे जल्दी से फाड़ती है और पढ़ती है कि उसके ऊपर क्या प्रिंटेड था. द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एट मैडम जॉर्ज रैपिनो रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लुइसेल कंपनी एट द पैलेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑन मंडे इवनिंग जनवरी 18. तो वो पढ़ती है कि मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस ने उन दोनों को एक बॉल यानी कि एक पार्टी जैसी थी उसमें इनवाइट करा है मंडे इवनिंग जनवरी 18 को. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation on table, crossing muttering, "What do you wish me to do with that?" तो खुश होने की जगह वो जोर से टेबल पर इनविटेशन पटक के बोलती है, तुम क्या चाहते हो, मैं इसका क्या करूँ? Why, my dear, I thought you would be glad. You never go out, and this is such a fine opportunity. I had great trouble to get it. Everyone wants to go, but it is very select, and they are not giving many invitations to clerk. The whole official world would be there. तो वो कहता है क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि तुम खुश नहीं हो? तुम तो कभी बाहर नहीं जाती हो. ये तो बहुत अच्छा मौका है और मैं ये टिकट बहुत मुश्किल से लेकर आया हूँ. वहाँ पे मेरे ऑफिस के सारे काम करने वाले होंगे. She looked at him with irritated glance and said impatiently, "And what do you wish me to put on my back?" और वो उसे चिड़चिड़ा कर देखती है और पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या पहन के चलूँगी. He had not thought of that. He stammered, "Why, the gown you go to the theatre in, it looks very well to me." अब उसने ये तो सोचा ही नहीं था, तो वो हकलाकर कहता है कि वो जो गाउन तुम सिनेमा में पहन के जाते हो वो भी बहुत अच्छा लगता है. He stopped, distracted, seeing that his wife was weeping. तो वो दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी बीवी रोने लग जाती है. Two great tears ran slowly from the corner of her eye towards the corner of her mouth. "What's the matter? What's the matter?" he asked. तो वो पूछता है क्या हो गया. By a violent effort, she conquered her grief and replied in the calm voice while she whipped away her tears. यानी वो चुपचाप आंसू पोंछते हुए कहती है, "Nothing. Only I have no gown and therefore I cannot go to this ball. Give your card to some colleague whose wife is better equipped than I am." तो वो कहती है बस इतनी सी बात है कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है और मैं ये बॉल में नहीं जा पाऊँगी. ये कार्ड किसी ऐसे अपने साथ काम करने वाले को दे देना जिसकी बीवी के पास सब चीज़ें हों. He wasn't despaired. He resumed, "Come, let us see, Madeline. How much would it cost to a suitable gown which you would use on other occasions? Something very simple." She reflected several seconds, making her calculation and wondering also what sum she could ask without drawing on herself an immediate refusal and frightened exclamation from the economical clerk. तो वो कुछ सेकंड तक सोचती है, मन में कैलकुलेशन करती है कि कितना पैसा मैं इनको बोल सकती हूँ जिससे एकदम से ये मना ना कर दें या एकदम से घबरा ना जाए ज़्यादा पैसा सुन के. शी केम टू नो वॉट हैवी हाउस वर्क मेंट एंड द ऑडियस केयर्स ऑफ द किचन. यानी अब उसे पता चला कि घर का काम करना कैसा होता है. शी वॉशेस द डिशेस, यानी कि वो सब बर्तन मांजती थी. उसकी जितनी भी रोज़ी नेल्स थे वो सब ग्रीसी हो गए थे, यानी काम कर करके उसके हाथ खराब हो गए थे. शी वॉश द सॉइल्ड लाइन इन द शर्ट्स एंड द डिश क्लोथ्स विच शी ड्राइड अप ऑन द लाइन. शी टुक द स्लोप डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग, कैरिड अप द वाटर, स्टॉपिंग फॉर ब्रेथ एवरी लैंडिंग. यानी वो कपड़े धोती थी, पानी भर के लाती थी. एंड ड्रेस्ड लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल शी वेंट टू फ्रूटर, द ग्रॉसर, द बुचर, अ बास्केट ऑन अ आर्म, बार्गेनिंग, मीटिंग विथ इम्परफेक्टनेस, डिपेंडिंग हर मिसरेबल सौ बाय सौ. यानी कि घर घर जाकर वो काम करती थी और जिनके पास भी वो जाती थी जैसे किराने वाले या जो भी सामान लेने जाती थी उनको अपने बारे में बताती थी और उनसे सामान मांग कर लाती थी. Every month they had to meet some new notes, renew others, obtain retire. Her husband worked in the evenings, यानी उसके पति ने भी शाम को ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया, अकाउंट्स बढ़ाने लग गए, रात को काम करने लग गया. This life lasted 10 years, यानी ये कर्जा चुकाने में उन्हें 10 साल लग गए. At the end of 10 years, यानी 10 साल ख़त्म होते होते उन्होंने सब पे कर दिया था, सब वो अपना इंटरेस्ट ख़त्म कर चुके थे. मैडम लुइसेल लुक्ड ओल्ड नाउ, अब वो बूढ़ी लगने लग गई थी. शी हैड बिकम द वुमेन ऑफ इम्पोवरिश्ड हाउस होल्ड, स्ट्रॉन्ग हार्ट एंड रफ. यानी अब वो अलग से ऐसा लगता था कि ये कोई काम करने वाली है. फ्राउजी हेयर, स्कर्ट, आस्ट एंड रेड हैंड्स. She talked loud while washing the floor with great swish of water. But sometimes when her husband was at the office, she sat down near the window and thought of the gay evening of long ago, of that ball where she had looked so beautiful and been so much admired. अब वो कपड़े धोती थी, सारे काम करने के बाद जब उसका पति घर पे नहीं होता था और कभी कभी बैठकर वो सोचती थी कि वो शाम कैसी थी जब वो इतनी खूबसूरत लग रही थी.
वॉट वुड हैपन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, यानी कि वो सोचती है कि क्या होता अगर वो नेकलेस मुझसे ना खोया होता, क्या पता, कौन जानता है कि एक छोटी सी चीज़ ने मेरी लाइफ कितनी बदल दी. But one Sunday, having gone to walk in the Champ Isles to refresh herself after the labors of the week, she suddenly saw a woman who was leading a child. It was Madame Frostier, still young, still beautiful, still charming. यानी एक संडे जब वो टहलने जाती है तो उसे एक औरत दिखाई देती है एक बच्चे के साथ में. वो उसकी वही दोस्त होती है जिससे इसने नेकलेस उधार लिया होता है. वो अभी भी उतनी ही सुंदर होती है जितनी 10 साल पहले थी. Madame Louiselle felt moved. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all about it. Why not? तो वो कहती है कि चलो आज मैं इससे बात करती हूँ, इसे बताती हूँ कि क्या क्या हुआ है. She went up. Good day, Jane. The other, astonished to be familiarly addressed, but the plain good wife did not recognize her at all and stammered, "But madam, I do not know you. You must be mistaken." तो वो कहती है कि मैं तो तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ, तुम कौन हो. I am Mathled Louiselle, अपना नाम बताती है. Her friend cried, "Oh my poor Mathled, how are you changed?" तो वो कहती है, अरे तुम इतना बदल कैसे गई. Yes, I have had a very hard life since last I saw you, and great poverty, and that because of you. Of me? How so? Do you remember that diamond necklace you led me to wear at the minstrel ball? Well, yes. Well, I lost it. What do you mean? You brought it back. I brought you back another exactly like it, and it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that was not easy for us who had nothing, and at last it ended, and I'm very glad. तो ये बातों बातों में उसे पूरी अपनी स्टोरी बता देती है कि तुम्हें उस वापस करने की जो कर्जा था वो चुकाते चुकाते हमें 10 साल हो गए. मैडम फ्रॉस्टियर हैड स्टॉप. यू से दैट यू बॉट अ नेकलेस ऑफ डायमंड टू रिप्लेस माइन. तो वो उसकी दोस्त पूछती है क्या तुम कहना चाह रही हो कि तुम एक हीरे का हार लेकर आई मेरे हार की जगह. येस, यू नेवर नोटिस्ड इट देन, दे वर वेरी सिमिलर. एंड शी स्माइल्ड विद जॉय दैट वॉज वन प्राउड एंड इग्नियस. तो वह कहती है हाँ तुम पहचान ही नहीं पाई क्योंकि वो दोनों एक जैसे थे. Oh poor Mathled, why my necklace was paste, it was worth only more than 500 francs. तो उसकी दोस्त उसे कहती है कि उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर, ओ पुअर मैथलेट, जो मेरा नेकलेस था वो असली था ही नहीं, वो तो पेस्ट लगा हुआ था और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कीमत 500 फ्रांस होती. यानी कि इन्होंने उसको पूछा भी नहीं एक भी बार और इन्हें लगा कि वो असली हीरे का है तो इन्होंने जाके असली हीरे का ख़रीदा जबकि वो नकली था. और इतनी मेहनत इन्हें करना ही नहीं पड़ती अगर ये एक बार उससे पूछ लेते तो.